عمران پہ ہاتھ رکھے ہیں نا کہ ہم عمران کے ساتھ کھڑیں گے، آخر دم تک کھڑے ہوں گے، چاہے ہماری مطلب لاسٹ موت تک ہم کھڑے ہوں گے عمران خان کے ساتھ. جتنے بھی بولتے ہیں اس کے بندے کھڑے ہوں گے، چاہے جو بھی اس کا مطلب نشان ہوگا، انشاءاللہ ووٹ ہم سب اس کو دیں گے. تو انشاءاللہ ہماری طرف سے تو انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے ٹانک جو علاقہ ہمارے بس میں ہے نا، انشاءاللہ جتنے بھی بندے ہیں نا سب ووٹ عمران خان کا ہے. اور چلو شکر ہے، پہلے ہم لوگ جب جتنے بھی چیختے تھے نا تو زیادہ تر لوگ بولتے تھے یار یہ افغانی ہے، یہ پٹھان ہے، تم لوگ افغانستان جاؤ، فلانا ہے، وہ ہے. لیکن ابھی سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ تو مطلب 70 سالوں سے یہ مطلب پاٹ پر آ رہے، کبھی ایک کو پاس کر رہے، کبھی دوسرے کو پاس کر رہے. جب ایک بندہ اس کو سامنے آیا نا تو ابھی سارے بندے اکٹھے ہو کے ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے. لیکن انشاءاللہ ہم ایک ہی بندے کو پاس کریں گے، سارے بے غیرت فیل ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ویلکم ہو گیا سعید بھائی. سعید بھائی ویلکم ہو گیا. سعید بھائی ایک منٹ سیکنڈ صرف. تو یار ویسے سارے ہم ادھر ہیں. ویسے ایک میں رات کو نا اکثر یہ چیز سوچتا ہوں، آنکھیں بند کر کے نا امیجن کریں وہ کیا لمحہ ہوگا جب خان صاحب کے سامنے آئیں گے دنیا کے. یقین کریں آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے. کیا وہ لمحہ ہوگا یقین کریں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو صرف مرشد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آنا. یقین کریں کہ کتنے چینل یہ کور کریں گے. آپ کی سوچ ہے سنو بہت سے بندے اس طرح ہوں گے کہ صرف مطلب روڈ پہ چلاتے یا مطلب عمران خان کا سپورٹ کرتے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم ہم لوگوں نے یہاں تک کہ مقابلے کے لیے جو چیز لگتے ہیں نا ہم نے سارا چیز وہی بھی ارینج کر دیا. چاہے بھی کچھ بھی ہو جائے نا، اگر بات مقابلے پہ آ جائے نا انشاءاللہ ہم اپنے سینے پہ گولی بھی کھائیں گے لیکن عمران خان کو پاس کریں گے انشاءاللہ. مسعود بھائی آپ کو ایک انفارمیشن میں نے دینی تھی، 2 انفارمیشن دیتا ہوں. جی خان کی امیجنیشن پتہ کیسی ہے؟ 1988 میں جی عبد القادر کو مین آف دی میچ ملا تھا، ٹھیک ہے؟ السلام تو علیکم. عبد القادر نے خان صاحب کو دے دیا مین آف دی میچ. کہتا میں ایک نا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہوں جو جونیئرز ہیں. خان صاحب نے تب نا کارنر ٹائیگر کی ٹی شرٹ پہنی تھی. میں 88 کی بات کر رہا ہوں. وہ بندہ پھر 1992 میں فائنل میں وہی کارنر ٹائیگر کی ٹی شرٹ پہن کے آیا. تو بھائی اس کی امیجنیشن ایسی اس بندے کی کہ وہ ایسی پلاننگ کرتا ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے، اور اتنا اس کا ایمان پختہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کر کے رہتا ہے. ابھی بھی ہان کہہ رہے ہیں نا میری گورنمنٹ واپس ہے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا ہان کی گورنمنٹ واپس آئے گی. اور مین الیکشن آپ کا پنجاب کا الیکشن بچانا ہے، آپ نے پنجاب کا الیکشن پنجاب کی طرف سے اللہ کرے کہ پنجاب کے لوگ سب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دل سے کھڑا ہو آپ کو جائے. پتہ ہے پنجاب اتنی ورت رکھتا ہے کہ جتنی آپ کے پوری اسٹیٹ بلوچستان کی سیٹیں ہیں نا جی ہاں، اس کی قومی اسمبلی اتنی صرف لاہور کی ہیں. تو میں یہ اس لیے ہم اس بات پہ خوشی ہے کہ ابھی ہمارے جتنے بھی پنجابی بھائی ہیں نا اللہ کرے کہ سب اس طرح کھڑا ہو جائے جس طرح ہم کھڑے. ہم تو وہ بندے میں کمتی ہیں، ہمارا خیبر پختونخوا ہے، لیکن خدا کی قسم ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ہر بندے نے یہ قسم کھایا ہوا ہے کہ ہم عمران کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ چاہے آگے مقابلہ بھی آ جائے نا تو انشاءاللہ ایک دو بندے جو ہے نا ہم لوگ اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ جس طرح بھی مقابلہ آ جائے نا. خدا کی قسم میں نے خود بھی 4-5 لاکھ کا سامان لے لیا. میں نے کہا ایک دفعہ عمران خان نے بولا تھا کہ تیار ہو جاؤ، تو ہم لوگوں نے بولا کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم لوگوں نے بڑوے کو دیکھے نا کہ ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں نا، وہ سٹریٹ فائر کرتے ہیں. ہمارے بہت سے بندے مر گئے ہیں نا. ہم لوگوں نے ابھی 1 مہینہ لاہور میں نے عمران خان کے دھرنے میں 1 مہینہ میں نے گزارا تھا. ابھی شاید میرا پکچر بھی آپ وہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. پورا 1 مہینہ وہاں پہ ہم نے مقابلہ کر دیا. پھر بھی تھوڑے بہت مجبوریاں تھا، پھر باہر آیا. لیکن انشاءاللہ اس بار ہمارے ساتھ جو پنجابی کھڑا ہوں گے لاہور کی طرف سے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ عمران خان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتے انشاءاللہ. مسعود بھائی ایک انفارمیشن ہمارے پٹھان بھائیوں کے لیے، جب انہوں نے خان کے اوپر پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا تھا نا عدالتوں کے اندر، ان کے ڈیفنس کے جو انالیسس نے انہوں نے بولا تھا خان کو چھوڑ دو کہ پی کے میں اسلحہ ڈیپو ہیں، ادھر سے اسلحہ ختم ہو گیا ہے. میں پوری بات نہیں کرنا چاہتا تو ان کو چھوڑنا پڑا تھا. تو سر پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے نا کشمیر میں کسی جگہ، ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ کھل کے ہیں ہر دفعہ پنجابیوں کی مدد کے لیے، کشمیریوں کی مدد کے لیے، سندھیوں کی مدد کے لیے. یار
जितनी हम बात की है कम मुनाफाकत है भाई। नहीं है, हम लोग में मुनाफाकत नहीं है। हम जो भी बिल्कुल बात कर लेते हैं सीधा साफ सुथरा कर लेते हैं कि यार अभी है तो बस जो भी होगा देखा जाएगा। हमें वो बात नहीं है। बहुत से लोग पीछे हो जाते हैं, हम लोग फिर पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ ना, बड़ा कमज़ोर सा हूँ, पतला सा हूँ, लेकिन खुदा की कसम जब बात आ जाती है तो बोलते हैं मौत कबूल है, लेकिन हाँ पीछे नहीं हटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बगैरत अपने आप को हमको लगता है कि यार अगर आप पीछे हो जाए तो रात को अपने चरपाई पे जब सो जाता हूँ ना, तो भी अपना आप को मैं बगैरत समझता हूँ कि यार इस बात से आप क्यों पीछे हट गए। तो इंशाल्लाह हम तो खान के साथ ऐसा खड़े हैं ना कि शायद इमरान खान को अगर पता चल जाए तो पूरा दुनिया के साथ ये भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी इंडियन ने कहा था कि अगर हमारी जंग होगी पाकिस्तान से तो हमारे पास ऐसी कौम है जिसका रात को 12 बजे दिमाग ख़राब हो जाता है, हम उनको छोड़ देंगे पाकिस्तान पे। फिर पाकिस्तान से जवाब किया था तो वो तो 12 बजे ख़राब होता है ना, हमारे पास ऐसी कौम है जिसका दिमाग 24 घंटे ख़राब रहता है। तब वो चुप करके बैठ गए थे। और ये हराम ज़ादों को पता है, इनको पता है, इसलिए खान साहब को इन्होंने अभी तक उंगली टच नहीं किया। बंद किया है ठीक है, लेकिन उंगली टच नहीं किया। इनको पता है अगर खान को कोई नुकसान देंगे तो सबसे पहले KPK उठेगा। और अभी जो आवाज़ें पंजाब से सिंध से भी उठ रही हैं ना, ये डरे में, ये घबराए में, इनको पता नहीं है, पकड़ तो लिया है कि छोड़ें ना छोड़ें, ये बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन ये 8 फरवरी का जो ड्रामा होगा इसके बाद इंशाल्लाह वक्त फैसला करेगा। बाकी हम तैयार हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इमरान खान को पास हो जाए। और दूसरी बात ये ना कि शुक्र है कि उस टाइम उसने इमरान खान को कुछ किया नहीं। अगर किया होता, हमने कसम से जितने दफ़ा इमरान खान ने हलफ लिया कि आप हमारे साथ खड़े होंगे, तो मुझे उस दिन रोना आ रहा था। मैंने कहा अल्लाह करे कि इसको कुछ ना हो जाए, पता नहीं कितने बेकसूर को गोलियां लग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो अहद उठाया था और हमको मालूम है कि कौन कर रहा है। क्योंकि पहले तो हम लोगों के साथ जितना भी ज्यादती होती थी कोई हमारा मानता नहीं था ना। हम जितने भी चीखते थे तो कोई सब बोलते थे यार ये तेरा दहशत करे, फलाना है, ये वो है। तो हमको तो सारा मालूम था कि यार कौन मतलब इलाके से लोग लेके आ रहे हैं, कौन ये धमाके करे। क्योंकि सर जी अभी मेरे पास खुद मोबाइल में बहुत से वीडियो है ना, जहाँ पे ये फौज है ना, जहाँ पे ये मतलब ये सिस्टम चलाते हैं ना, खुदा की कसम ये 53 के 54 लोग आदमी ये अभी ये ब्रॉड देख रहे हैं ना, एक एक चीज़ में आपको दिखा सकता कि ये देखो, ये सिस्टम देखो, ये सब ड्रामा बाजी कर रहे हैं। अल्लाह करे बस इस बार इमरान खान पास हो जाए और इसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। मुझे पता लग रहा है जिस दिन इमरान खान के साथ कुछ हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह, इतना मुझे मालूम है कि हम उस दिन से बागी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं कुछ होगा, अल्लाह खैर करे। खुद करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको इनके सरों पे कुछ हो गया तो एक भुट्टो जिसका सिर्फ थोड़ा सा सिंध में नाम था वो अभी तक हज़म नहीं हो गया है। ये खान है, इसका तो पूरा पाकिस्तान में छोड़ो पूरा दुनिया में नाम है। वो ये खान की खुद हिफाजत कर रहे हैं, उसको कैद तो किया है, उसकी तस्वीर भी आने से बाहर नहीं आने देते हैं क्योंकि डरते हैं कि जैसे खान का चेहरा भी नज़र आएगा ना, कौम का जज्बात और भड़क जाएगा। इसीलिए उसको बाहर अदालतें में जेल के अंदर लगाते हैं। तो ये उसका अंदर तो रखा है लेकिन हिफाजत उसका खुद कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर खान को कोई छोटा भी नुकसान आया ना तो ये बढ़ गया, समझो पूरा मुल्क बढ़ गया। सही भाई कुछ ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपने टारगेट रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे इसके बंदे आ रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं। मैंने खुद अभी मतलब वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अच्छी बात नहीं है वक्त से पहले कि वो बातें कर लो, लेकिन मैंने टारगेट रखा है कि कुछ ना कुछ हो जाए तो इसका माँ बहन मैं एक करूँगा। यार इतना तो मुझे मालूम है कि जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारा SSG कमांडो है, इतना तो मुझे मालूम है कि मैं अपने इलाके में SSG कमांडो 10 हो जाए, मैं अपना एक होऊंगा तो इंशाल्लाह मुकाबला कर सकता हूँ। हर किस्म का सिस्टम चलाना आता है। वो तो भाई SSG बड़ा कमांडो होता है। बाकी सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने एक सवाल रखना था सब भाइयों के पास, अगर बुरा ना मनाओ तो अभी ये आपने जो है तस्वीर लगाई है राजा साहब की, तो आपसे मैंने ये सवाल करना था कि जब राजा साहब मिनिस्टर थे, इनके पास पासपोर्ट की अथॉरिटी इनके पास थी और पाकिस्तानियों को अपनी नेशनैलिटी लेने के लिए
ख़तरा पड़ गया, उनके इंक्वायरियाँ 2-2 3-3 साल चलती रहीं। तो इसके बारे में मुझे बता दें राजा साहब की कारकर्दगी। क्या किया था इन्होंने वो आपकी बात को थोड़ी सी समझ नहीं लगी। मार्केट स्ट्रीट एंड ओवर द टनल। जी, राजा साहब के पास मिनिस्ट्री थी सर। तो राजा साहब ने सारी जो थी ना, देखें जो लोग मुल्क से बाहर आए हुए थे ना, तो उन वो किसी का पासपोर्ट गुम हो गया या पासपोर्ट ख़त्म हो गया था ना, तो उनके पास शनाख्ती कार्ड था। जब उन्होंने अप्लाई किया तो सारी एम्बेसियों में से उनकी इंक्वायरी गई, तो 2-2 साल 3-3 साल उनको वेट करना पड़ा। अब हालांकि उनके पास सबूत भी था कि हम पाकिस्तानी हैं। तो ये राजा साहब ने क्यों ऐसे किया? इमरान अपना खान के टाइम की बात कर रहे हो आप? जी सर जी। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि ये चीज, अब मुझे नहीं पता ये कब हुआ है, ये इस चीज का मुझे बिल्कुल ही इल्म नहीं है, लेकिन आपको मैं सर मुझे इल्म है ना, बच्चे रो रहे थे ना, मुझे 27 साल हो गए यूरोप में, तो सर बच्चे मैं रो रहे थे। यकीन करें कि वो, मैं एम्बेसियों में उनके साथ गया हूँ, खुदा की कसम वो रो रहे थे। और इन्होंने इतना जुल्म किया था कि उनको पाकिस्तानी डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। उनके पेपर जो थे वो बन जाने थे, उन्होंने लीगल हो जाना था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ये राजा साहब अब उस इस चीज वक्त का पता नहीं है आपको, मुझे नहीं इस बात का इल्म, क्योंकि देखिए मैंने 2020 में नेशनैलिटी ली है, ठीक है, तो भाई हमें तो 2 महीने में 3 महीने में मिल गई। आपने 2020 में ली ना, पर मुझे इस बात का पता है, मैंने पता कब नेशनैलिटी ली है, 98 में। आप 98 की बात कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने 98 में नेशनैलिटी ली है। मैं भाई तो मेरे आपने पाकिस्तानियों तो की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सवाल किया कि 1-2-4 दिन ना पहले किसी ब्राड के ऊपर आके एक बंदे ने बात बोली है कि खान साहब के दौर में मैं जो है ना आर्टरी का ओ सर मैं 98 में प्री नेशनैलिटी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। मानी भाई भाई बात सुन लो ना, बात सुनने का हौसला रख लो ना, बात आप मिक्स ना करो। मैं तो खुद 27 साल से यूरोप में रह रहा हूँ, मैं उन बच्चों के साथ गया हूँ मेरे भाई, वुल्फ भाई आपका जो नाम रो रहे थे। यार आप बात पूरी सुनोगे तो आपने, तुम्हारी बात में कोई बोल नहीं रहा, तो तुम अगली भी सुनो, हमें हौसला है आपकी बात करने का। एक मिनट में आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जो राजा बिशारत साहब थे यार, ये तो पेट्रोलियम के वजीर थे, इनका तो अभी आप इंटरनेट पे चेक करें ना, पासपोर्ट इनके पास था। नहीं यार, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास होता है। मेरी एक बात याद मिनिस्टर इंटीरियर नहीं रही है, ये नहीं थी। अब आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम थे, ठीक है, इनके पास थी। ओए भाई जान, आप एक दफा जाके फिर चेक कर लें आप सर, ठीक है। या ये पंजाब के रहे हैं वजीर, नहीं पंजाब की नहीं रही है वजीर, ये सरकार नहीं पंजाब के नहीं सर, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। और दूसरी आपको एक और बात बताऊं, जरदारी बने होंगे, अभी आप नेट पे चेक कर लेना, फिर मुझे बताएं। मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। जरदारी के टाइम पे आपको पता है 15,000 जो है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू हुए थे, 2 नंबर 15,000, जिनमें कुछ इंडियंस भी पकड़े गए थे, ठीक है। और ये भी काफ़ी मसला बना था इस चीज़, 15,000 लोगों को इशू हुए थे पाकिस्तानी पासपोर्ट। और दूसरी जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो राजा बिशारत साहब हैं, ये सर कभी भी इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक इशू बना था, वो ये बना था कि जो पायलट्स थे उनकी डिग्रियां जाली थी, ठीक है, उनका इशू बना था। ये शनाख्ती कार्ड्स के ऊपर कोई इशू नहीं बना था। शनाख्ती कार्ड नहीं, मैं पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर, आप नेट पे जाके चेक कर लें। वही मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक इशू बना था, ये थे ये था कि जो पायलटों के पास जो है ना, वो उनकी डिग्रियां फेक थी। डिग्रियों के ऊपर आप बात कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि पासपोर्ट के ऊपर कोई इशू बना था, ठीक है। या कि अभी आपने किस कंट्री की आप बात कर रहे हो, नेशनैलिटी आपने किस कंट्री एम्बेसी में गए थे, आप ये बताएं। नहीं मैं बताता हूँ, एक मिनट देर भाई। कभी भी राजा बिशारत जो है ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रहे, वो
सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। वो अभी भी इंटीरियर मिनिस्टर थे ही नहीं, तो आप किधर की बात कर रहे हो खान मैं साहब की वही कह रहा हूँ हुकूमत? ना, अगर तो देखो भाई ये जो वुल्फ वाले भाई हैं वो चले गए हैं। अब मानी भाई देखो, वो जो वुल्फ वाले अगर सुन रहे हैं नीचे चले गए, तो मैं उनको एक बात बताता हूँ, अगर ये इटली में है, स्पेन में है, पुर्तगाल में है, या कहीं भी हैं, हर कंट्री का अपना एक टाइम स्केल होता है, वो अपने टाइम के हिसाब से देते हैं नेशनलिटी। वो जल्दी नहीं देते। यूके का टाइम जो है वो 6 महीने है, आयरलैंड का टाइम जो है वो 2 साल है, 2 साल है। अब उसमें पाकिस्तान की गलती तो नहीं है, वो 2 साल लगा रहे हैं आपको नेशनलिटी देने में। इटली के जो है वो आप 13 साल वैसे रहते हो, 13 साल के ऊपर 3 साल आपको लगते हैं, 16 साल का टोटल प्रोसेस। अगर कोई इटली का भाई होगा इधर, वो क्लियर कर देगा। तो पता नहीं है भाई कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे तो उनकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं इसीलिए वो आपको मिसाल दी ना सीएम भाई, ये राजा बिशारत साहब इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं कोई इमरान खान के दौर में? नहीं रहा। नहीं, वो गलत बयानी कर रहे थे। और दूसरा, जो पासपोर्ट और वीजे की सिचुएशन होती है ना, वो रेड क्लिफ अदारा है, ठीक है, गोल्ड अदारा है, वो पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है। उसमें यार पाकिस्तान के वजीर की किधर से इन्वॉल्वमेंट आ गई? वो गलत बयानी कर रहा था। नेशनलिटी तो रैंकिंग होती है। नेशनलिटी देखें, वो वुल्फ भाई नीचे काल का कह रहे हैं, नेशनलिटी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही तभी होती है जब आपकी आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाए आपकी एम्बेसी से या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। मैं आपको एक और बात बता दूं, 2008 से लेकर 2010 तक मैं पासपोर्ट ऑफिस में जॉब करता रहा हूँ इस्लामाबाद में, ठीक है, हेड ऑफिस में, पेशावर मोड़ के ऊपर है। 2 साल मैंने जॉब की है, ठीक है। तो ये भाई को कुछ गलत फहमी हुई है, इनको कुछ पता नहीं है, सही है। ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। जब तक आपकी आईडी वेरीफाई है ना, वो जो इनिशियल स्टेज होता है नेशनैलिटी की वेरिफिकेशन का, इनिशियल स्टेज ये होता है, वो सबसे पहले बंदे की नेशनैलिटी वेरीफाई करते हैं। कहाँ से? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास जब कोई नेशनैलिटी वेरिफिकेशन के लिए होगी, वो तो जल्दी हो जाता है प्रोसेस। उसके बाद का जो टाइम लगाते हैं आपके क्रिमिनल चेक्स होते हैं, वो तो आपकी उधर की गवर्नमेंट का काम है ना। वो डिले अगर हो रहा है आपको, वो तो गवर्नमेंट से पूछे ना क्यों डिले हुए, आपने उठा के इनके ऊपर डाल दिया। अजीब बात है यार। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में कोई नोट लिख किया है, ये अपनी ना आईडी चेंज करके आता रहता है, फजूल के सवाल करेगा, ना उसके सर होंगे ना पैर होंगे, और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बैठेगा, फिर उसके बाद फिर ये गालियां देना ऐसी शुरू होगा, फिर आपको खुद इसको ना नीचे उतारना पड़ेगा। मैं इसकी आवाज से इसको पहचान चुका हूँ। समझ आ गई थी ये कौन था। वो रायल वाला था, ये पहले रायल के नाम की आईडी थी, इसीलिए मैंने इसको फेंक दिया था नीचे कि राजा बिशारत साहब का मिनिस्टर रहे ही नहीं है। मैंने इसलिए मिसाल दी कि वो एक बंदा आ गया कसम से आके कहता मैं आड़ती नहीं हूँ गुजराले के अंदर ना, ये आड़ती नहीं होते जो ये सब्जी वगैरह, तो कहता है हान के दौर में आलू जितना महंगा रहा है ना कभी भी नहीं रहा, ये हान की नाकस कार कर दी गई थी। मैंने कहा वो आके आपको आलू सस्ता करके देता। अजीब से लोग आ जाते, अल्लाह की कसम है। वही तो। आलू आपके दौर में महंगा था, मैं इसलिए इसको ये मिसाल दे रहा था। ओ यार कोई हाल नहीं, खुदा की कसम। ओ हाँ, वो पायलट वाली पता है, वही थी बात। एक कोई चला था, शायद इस मिनिस्टर से हुई थी, किस मिनिस्टर से हुई थी मुझे पता नहीं है वो बात। अब देखो वो तो डिग्रियां जल्दी निकल आई थी, तो उसमें वो हुआ जो बाद में फिर एयरलाइन की बैन हो गई। गुलाम सरवर था जी, तो वो एक चीज हुई थी, वो तो हमें पता है, लेकिन ये पता नहीं अजीब सी कोई बात कर रहे हैं, कुछ समझ से बाला तरी बात है कोई। जब देखें तो चल रही है और बहुत लोग लिसनर्स आते हैं, तो फिर ये कोशिश करते हैं कि कन्फ्यूजन कोई फैलाई जाए, फिर गंदगी फैलाई जाए, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। और वैसे भी मैं इसको कहने वाला था कि भाई अगर इसने किया भी था ना, तो हमें अभी हमारे लीडर से हुक्म मिला है कि जिसको वो एक खंबे को भी खड़ा करेगा, टिकट देगा ना, तो हम उसका साथ खड़े हैं। हमें नहीं परवाह कि किसी गलती की है, कोई मिसिंग बात हुई है, वो होगी, उसको देखते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा एक टारगेट है कि हमने वोटिंग के लिए और इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। ये चीज़ें हमें कंफ्यूज करने वाली बातें कोई ना करे। सही बात सईद है। भाई ये आपसे एक सवाल करना था, जरा माइक ओपन करें। जी जी, ओपन है माइक। जी नहीं मैं सईद भाई से, सईद भाई आज आप किधर हो? आप बहुत आस्था बोल रहे हो। यार तबीयत कुछ ठीक नहीं, गला भी ख़राब है। पहले मैं बात भी नहीं कर रहा था, अभी मैंने बड़ी जोर लगा के बस थोड़ी आवाज़ निकाली है। अच्छा चले सही है, ठीक है। मैंने कहा हैर है भाई, हमारे में तो बहुत अंदर जज्बात होते हैं, आज बड़े स्लो बोल रहे हैं, अल्लाह हैर करे। जी सईद भाई आप कंटिन्यू करें। नहीं बस वही, वो भाई ने क्लियर कर दिया बात, सही है। फजूल बातों का जवाब देने नहीं, का जहीर भाई एक हमारे मिनिस्टर थे रहमान मलिक ना, वजीर दाखिला थे, ठीक है। जी जी।
उन्होंने तकरीबन 200 के करीब ना डिप्लोमेट पासपोर्ट अपने रिलेटिव्स वगैरह को बांट दिया। आपको पता है डिप्लोमेट पासपोर्ट के ऊपर मतलब सेस होती है। और सर जी उसने हरकत की मैंने थी, उसी ये गलत उसी बता मिनिस्टर के अंडर काम किया हुआ है पासपोर्ट ऑफिस में बिल्कुल। मुझे सब पता है। हाँ, तो ये अभी आपको पता है एक और वजीर थे हमारे सरवर चौधरी गुलाम सरवर थे, उन्होंने जी जी। अनाउंसमेंट कर दिया था पार्लियामेंट के पाकिस्तान के सारे पायलट जाली डिग्रियों के ऊपर है, ठीक है। हम्म। तो उसका सिर्फ ये रिएक्शन हुआ था, यूरोप में ना अभी एयरलाइन पे ना पौधी लग गई थी, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो वजह ये थी कि एक थे नून लीग के ना साबका सेनेटर मुशाद अहमद, बड़ी शेर शायरी भी करते थे, हम्म। तो वो भी आई थिंक फोत हो गए हैं। तो उन्होंने उनके 3 भाई ना एथरेट के ऊपर ना मोस्टली पीआई के ना ब्रांचों के ऊपर लगे हुए थे, 15-15 लाख के करीब सैलरी लेते थे पर मंथ। और उन्होंने सारे किट्टे चिट्टे जितने नथू थे ना सारे भर्ती की थी पीआई के अंदर, सारे जली पाने दिए, उनकी हरकत थी। केवल 300-400 जली डिग्रियों के ऊपर पायलट भर्ती की किए थे इन्होंने, नो लीवियों ने। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, आज की क्या नई न्यूज़ है? वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई और बाकी तमाम दोस्त, क्या हाल है सबके? सब खैरियत से हैं? अच्छा, मेरा जो इधर आबिद भाई हैं या जितने भी मॉडरेटर हैं, काइंडली अगर कोई बंदा रिक्वेस्ट भेजता है ना तो उसकी आईडी पहले चेक कर लिया करें कि ये बंदा कौन है। कई बंदे ऐसे होते हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं। हम यहाँ पे किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठे, हम सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बैठे हैं। तो अगर किसी का कोई इस हवाले से सवाल होता है तो उसको हम क्लियर भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो आई थिंक दुबई में एक हुआ था कि एक बंदे को उसकी ना घर पता नहीं वालदा या वालिद फौत हुआ था, तो वो गया, उसकी अर्जेंट टिकट नहीं लग रही थी, तो वो एम्बेसी में गया। एम्बेसी में उस टाइम पता नहीं कौन से थे इधर सफ़ीर, तो उन्होंने अपनी जेब से उसको टिकट करवा के दी थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी जेब से टिकट करवा के दी थी। इस तरह के ये ना नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो बहुत उठाते हैं। हर बंदे के पास पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती। कोई बंदा आज मुझे दिखा दें कि जिसके पास सारी चीज़ें पॉजिटिव है। हर बंदे में गलती है, हर बंदे में एक खूबी है ना तो उसके पास 10 गलतियाँ भी हैं। तो हमारे माशरे की यही बदबख्ती है जिसकी वजह से हम इतने अरसे से ये समझ लें कि पाकिस्तान में अब जहालत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इसने वो गलती कर दी। हम सिर्फ गलतियां पकड़ते हैं, कभी किसी का पॉजिटिव पॉइंट नहीं पकड़ते। तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए कि पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना चाहिए। 99 खूबियों। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किसी के साथ 99 अच्छाइयाँ कर लेंगे, एक बुराई करेंगे ना तो वो आपको एक बुराई पकड़ेगा, आपकी 99 खूबियाँ नहीं पकड़ेगा। ये चीज़ें बहुत अस्सलाम सारी जो है वालेकुम ना। सारे भरावां गी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम वकास भाई। यार ये दसो राजे ने फोटो किड़ा चक्करां च लाया ने राजे बिशारत राणा, पता लगा टापू को। पैदल जा रहे और से टूर से जाता है वो भी नहीं टूर हाँ जी जी राशिद भाई बताएं। आबिद भाई जी एक मिनट आप अपना माइक बंद रखिएगा, ये फैसल भाई अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी। जी फैसल भाई कंटिन्यू करें आप। मैं बस यही कह रहा था कि हमें ना नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव से मुराद ये कि आप एक बंदे की अगर किसी की एक बुराई देख लेती है ना तो उसकी अच्छाई को भी देखें, ये ना देखें कि इसने ये गलती की थी। दूसरी बात ये कि एक भाई कह रहे थे कि केपी के इमरान खान के साथ है, तो इंशाल्लाह जो पंजाबी हैं, पंजाब है वो भी इमरान खान के साथ है, वो पंजाब भी इमरान खान का, पाकिस्तान पूरा इमरान खान का है। हम इंशाल्लाह दिलो जान से इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं और हर तरह से अपने जिस चीज़ की भी इमरान खान को हमारी ज़रूरत है, हमारे खून की भी ज़रूरत है। ये इमरान खान हमारे लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है
اور جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی بڑے آرام سے گزار سکتا تھا، لیکن اس نے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے یہ جد و جہد کی ہے۔ تو بے شک ہمیں بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ ہم نسل در نسل سیاست کے ساتھ چلنا ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے جو بندہ ہمارے خاطر اب جیل میں ہے اور اتنی ذلالت، اتنا سب کچھ برداشت کر رہا ہے، اس کو یہ سب جی کرنے کی چودھری ضرورت نہیں۔ فیصل ہے، کیا بات ہے، زبردست چودھری فیصل۔ جی وکاس بھائی، اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں میرا انشاءاللہ۔ پھر میں پوچھ رہا عابد صاحب وہ دسو نا راجے نے فوٹو کیوں لائے نے؟ راجے نے میں راجے نے ہلکے نہ وہاں اور نیچے ایک بھائی جماعت اسلامی سے ہیں در بھائی، وہ استغفر اللہ لکھ رہے ہیں، جب پاکستان اور بنگلہ دیش جب یہ ہوا تھا نا، تو آپ کسی ایک بندے سے بنگلہ دیشی سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی نے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اپنی ہسٹری چیک کیا کریں، اس کے بعد کسی پہ تنقید کیا کریں۔ آپ کو بس ایسے جو ہے نا وہ کسی چیز کے پیچھے جب لگا دیا جائے نا تو اس کے پیچھے بھاگ نہ جایا کریں، آپ تحقیق کیا کریں، ڈیٹیل لیا کریں، ہر چیز نیٹ پہ مل جاتی ہے۔ آپ اچھا نے ابھی بھائی فیصل ہو ظہیر ملک صاحب ہو راجا ری جڑے نا راجا ری اے وزیر قانون رہے پنجاب نے، ٹھیک ہاں ہے جی، یہ وزیر قانون ہے۔ اے دنیا نا ورلڈ ریکارڈ ہے جی، پوری دنیا تو سب تو زیادہ لا منسٹر رہنے والا ریکارڈ راجہ بشارت کول نے، ٹھیک ہے جی۔ جہازانہ واقعہ سی دسنے پہ غلام سرور خان صاحب این چون تو الیکشن لڑ آئی پی پی نے ٹکٹ تے انہاں چپل ماری پی ٹی آئی دی دور وچ۔ جی بالکل، ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨੋ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਰੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਹੋ, ਬਿਰੋਜ਼ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੋ, ਕਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਮਿਲਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਕੇ ਮਸੇਰ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਗੋਰਾ ਉਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਸੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਸਮਾਂ ਜਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਮਾਰਨੇ ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਲੋਧਰਾ ਛੋੜ ਸਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ। 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਲੋਧਰਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਿ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 70 ਤੋਂ 80% ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਲਾ ਮਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਵਾਂ ਲੋਗਰੀ ਨਾ ਸੀਗੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਫਯਾਬਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पिंडी ने जो राजे ने फोटो लाए। जी वकास भाई, ये जो भी बरोड चला रहे होते हैं ना, जैसे आबिद भाई बरोड चला रहे तो अपने हलके के जो भी कैंडिडेट है जो पीटीआई के टिकट होल्डर है वो उनको साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पिक्चर वगैरह लगा आबिद भाई किहड़ी जगह रहन पिंडी हुण ये आबिद भाई दस सकते हैं सही तरीके नाल। आबिद भाई सुनने पे हो? नहीं आबिद भाई इस टाइम सुते हुए हैं जी। जी असां की ला के आप सारे ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਆਖਨੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਵਰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਉਸ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਮੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਕੌਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹੋ ਸਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇ
پشاور موڑ اچھا اسلام آباد پشاور موڑ اسلام آباد والا جی ہاں اسلام آباد کی گل کر رہے ہیں آپ اچھا فیل ہے جڑا میں ٹھیک میں جی ہاں کرنا پیا پشاور موڑ پھر دائی والا جڑا اتھے ہوندے سن ملک نذیر صاحب شاید جان دے ہو سو تساں سرگودے دے سن پھر او ڈائریکٹر رہے نے گولڑا شریف پاسپورٹ آفس نہیں جڑا گولڈے موڑ تے گولڑے موڑ دا سوری جی جی گولڑا شریف آدا گیا وہ تو گولڑے موڑ والے بیکری چوک چلا گیا وہ تو ختم ہو گیا اتھے رہے نے ملک صاحب تے میں ملک صاحب رہا تقریباً 2 سال اچھا او ڈائریکٹر رہے نے گولڑا موڑ پر جڑا پاسپورٹ آفس حاجی کیمپ کھولو جی جی اچھا تسی کیڑی جگہ نے ہو ملک جی جی ہاں میں تقریباً اسی جناب جیلم دے ہاں اچھا جیل ہم ہوں عالم مقیم یو کے تقریباً 15 سال ہو گئے نا پاکستان نہیں میں انگلینڈ ہوں گا جی ہاں جی نہیں انگلینڈ ہوں گا تقریباً 15 سال ہو گئے مجھے واہ جی واہ سکھ والے کام ہے کہ جی ہاں ہاں جی بس جی کہ انہوں نے یقین کرو کہ 2 سال جاب کی تھی اللہ تعالیٰ جنت دیا والدہ محترمہ آمین آمین کو تھوڑا جہا حساب کتاب اس ویلے یہ جی سی کہ تمہیں پتا کہ وہ ایک گل ہے نا پاکستان کہ جدہ رشوت لینے کا دل نہ بھی کرے نا لوگ مجبور کر چھوڑ دے رہی ہے ساڈا کام کرو لو کرو وہ پھر تھوڑے جہے ذرا جڑے والدین سے گھبرا کے انہیں ہے پتر بھی بہتر ہے کہ تو جڑا نا باہر ہی ٹر جا وہ پھر میں کہ چلو صحیح ہے ٹھیک کیتا جا الحمدللہ 15 سال ہو گئے جناب ہم باہر ہی بیٹھے ہیں شکر اللہ دی اللہ تعالیٰ نے جی آبد صاحب کیڑی جگہ جناب آبد بھائی کدھر گئے وقاص بھائی عابد بھائی نا یہ پوری رات تقریباً 12 گھنٹے یہ بروڈ چلاتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی صبح کے ٹائم ہم لوگ گلف سے ہیں تو صبح پھر ہم لوگ ان کے ساتھ تھوڑا ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تو وہ کافی دیر سے 12-13 گھنٹے انہوں نے بروڈ چلائی ہے پھر ابھی وہ سو رہے ہیں وہ جی آئے زیادہ لگے تک ہونا سارے خان نے کس طرح کمپین چلنی بھی ہے خان دے جڑے سپورٹر ہیں نا وہ بغیر لالچ تو بغیر کسی جناب مفاد بھائی ظہیر خان نال میں تو دسا نا بھی اللہ تعالیٰ نے ذات جاننی ہے آنے والے وقت نہ لیکن اے ہن اج صبح نہ ٹائم ہے نا کل شامی نہ ٹائم دیون نہ منا رہے پاکستان نہ کہ کل اتھے عمران خان نہ صرف ایک کلپ جائے چلایا جلا سی تے ساری پی ٹی آئی آوے تے میں نا جی دنیا نہ سب تو بڑا اجتماع پی ٹی آئی کل اتھے کر سٹا صرف ایک کال دیون تے تکو کہ عوام بہنی ہے تے سکوٹراں تے رکشیاں تے چنچیاں تے پیدل نہ کوئی 1 to 5 کسیاں دیسی تے سارے انہاں نوں پتہ ہے انہاں نوں پتہ ہے سوری میں اردو وچ بولنا چاہواں گا تھوڑا جہا تاکہ اور بھرا بھی سن لون چھوٹی جی گل ہے وہ یہ ہے جناب کہ ان کو پتا تھا اگر یہ صحیح طریقے سے ابھی خان جیل میں ہے نا صرف یہ بیٹ کا نشان دے دیتے اور جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا یہ نہ کرتے خدا کی قسم ان کا وہ حال ہونا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ جو 75 سال سے ہم نے گند پھیلایا ہوا ہے نا اس نے ختم ہو جانا ہے وہ حقیقت بات ہے بھائی آپ ماڈریٹر ہیں جی فیصل بھائی بولے نیچے یہ کمنٹ چیک کریں نا یہ کوئی بغیرت نسل کے لوگ جو نا نیچے کمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا چیک کریں وہ ہائیڈ کر دیا کریں یہ میں تھوڑا سا نا وہ کام میں بھی نہ لگا ہوں اس وجہ سے میں دیکھ نہیں پا رہا ساتھ میں کام میں بھی اور ہیڈ فون لگائے ہوئے تو اس وجہ سے